See, the fact of the matter is that this is not an easy game. The reward in this examination is so great, it is so high, that anybody worth his salt would want to attempt this. For UPSC CSE 2027, it is going to be the toughest exam in all the years of UPSC. So this entire pool of selected candidates is going to come back and give the exam with us. Now, these are not ordinary people. These are people who have cleared prelims, cleared mains, cleared the interview, seen the services, probably been to Lavasna, and they are competing with us, and we need to be better than them. It is going to be a task where it will take everything that you have and probably more. You will spend a lot of nights when you cry, when you feel alone, when you feel depressed, when you feel that nothing is working out, when you feel that probably this was not the right decision to come to the services. You'd also probably feel that this exam is beyond you. And it is at that moment that I want to be standing by your side. You can be sure that the content you read here is good enough for prelims, good enough for mains, good enough for the interview. इससे better content market में है ही नहीं. I can tell you for sure that even the students of these big institutes, so to speak, are studying from us. मैं अगर आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँ, मैं अगर आपको साइंस एंड टेक पढ़ाऊँ, मैं भी किसी किताब से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो किताब आप भी पढ़ सकते हो. The main advantage of being here is that we save your time. अगर मैंने आपको इस लेवल से नीचे कुछ पढ़ा दिया, तो आपका टाइम बर्बाद किया मैंने. And that is what is mostly happening in online institutes. यहाँ ऐसा नहीं होता. शुरू में 3-4 महीने पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि अगर मेरा कोई एल्डर ब्रदर होता जो सिलेक्टेड होता, जिसको एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होता और वो मेरी हेल्प कर देता, तो ये एग्जाम सॉर्टेड था यार. मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था. That elder brother is standing in front of you. Hello and welcome to this orientation session. Today is the first session in our GS Foundation Batch 3 for UPSC CSE 2027. This is again, like I've told you, the most important session in your entire journey over the next 1.5 years. अगले 1.5 साल में आप काफ़ी पढ़ाई करने वाले हो. You're going to a lot of new things. You're going to understand a lot of new concept. Maybe solve a lot of MCQs, write a lot of answers. But all of it starts here today. It is what you do today and what you understand today that will shape your journey over the next 1.5 years. Just to give you a reference, in UPSC CSE 2025, the current year's exam that's going on, the interviews are currently running. Now, there were a lot of students who studied at Sarthi IAS. 750 of those students are giving the interview. 750 of our students, our internal students, not interview guidance students, जो मेंस क्लियर करके फिर हमसे मिलने आए, ऐसे भी बहुत लोग हैं. बट हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस पढ़ा है, these 750 students are giving the interview. But I'm not going to talk about these 750 students today. I'm going to talk about the rest of the students that studied from us. They had the same resources, the same content, the same timeline, but they're not giving the interview. 750 people are, the rest are not. ये डिफरेंस कहाँ से आया? Why is there a gap? ऐसा क्यों है कि 750 लोग तो इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं? 750 is a huge number. आपको लगेगा कि मैं अपने बैच में टॉप 750 में तो होऊंगा ही, but it's not easy. Multiple batches, multiple students, you might not be in that top 750. Why does this happen? Because दोनों की approach अलग है. There are people who are serious, who are dedicated, who are working hard, who are putting in all their effort to ensure that they make it. And then there are people who are romanticizing the preparation. कि preparation बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, class हो रही है, lecture मिल जाते हैं, I'm enjoying, साथ में, you know, I have some other interests also, I go out with my family and friends also, all of that. Now, see, the fact of the matter is that this is not an easy game. The reward in this examination is so great, it is so high, that anybody worth his salt would want to attempt this. आप एग्जाम क्लियर करो, and at the age of 25, 26, 27, you are one of the most important people in the country. Not only are your financial instruments, economical, desires, all of those taken care of, you also have a lot of power, and you get to enter the higher echelons of Indian society. Anytime you go anywhere, if you are in the civil service, it will matter, right? And you will get an entry. वो जो access है जो आपको मिलती है, unparalleled access है. A lot of money also can't get you the access that the civil service can get you. अब अगर ऐसा है तो बहुत लोग ट्राई करने वाले हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग ट्राई करने वाले हैं, एंड अगर बहुत ब्रिलियंट लोग ट्राई करने वाले हैं
the process is going to be tough. So it's going to be tough for us. For 2027, I'd like to say one special thing also. For UPSC CSE 2027, it is going to be the toughest exam in all the years of UPSC. ये सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी के सारे ईयर्स में. अभी से बता रहा हूं आपको विदाउट लुकिंग एट द पेपर, बिकॉज इट इज नॉट द पेपर दैट मेक्स यूपीएससी टफ, इट इज द कॉम्पिटिशन दैट मेक्स इट टफ. वॉट रूल हैज यूपीएससी कम आउट विद? आप लोगों को पता होगा, आपने अगर वीडियोस देखी हैं, फॉलो किया है तो यू वुड नो दैट यूपीएससी हैज सेड that anybody who has been selected previously, let's say somebody who has been selected in UPSC 2025 or earlier, they can now give the exam only once more, either in 26 or 27. So let's say somebody like me in UPSC CSE 2022 became an IRS officer, worked as an IRS officer for 3 years, did not like the IRS, या कहता है कि ठीक है अच्छी जॉब है but maybe I can do better, और सोच रहा था कि हाँ ठीक है यार 2-3 साल हो गए, अब देखते हैं अटेम्प्ट देना है नहीं देना है. सडनली दिस रूल कम्स, नाउ ही नोज ही हैज ईदर दिस ईयर और दिस ईयर. 2026 में तो टाइम बचा नहीं, अब एग्जाम आने वाला है. सो ऑल ऑफ दीज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स हैव 2027 एज देयर लास्ट ईयर ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. फ्रॉम 2028 these previous pool of selected candidates will not be your competition. तो 2028 का एग्जाम काफी आसान होगा. अब ये सोच के आप में से कई लोग कहेंगे ठीक है सर फिर 1 साल बाद दे देंगे, बट डोंट हैव दैट अप्रोच. 2027 is going to be tough. It's going to be tough because this entire pool of selected candidates is going to come back and give the exam with us. Now these are not ordinary people. These are people who have cleared prelims, cleared mains, cleared the interview, seen the services, probably been to Lavasna, and they are competing with us and we need to be better than them. आज आपके फर्स्ट डे पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आज ये बात आप समझ जाते हो और आप इस लेवल की मेहनत करते हो, ओनली देन यू स्टैंड अ चांस इन यूपीएससी सीएसई 2027, अदरवाइज यू डोंट. अदरवाइज आपके पास चांस नहीं है ऑफ मेकिंग इट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, सिंपली बिकॉज इट इज अ वेरी टफ प्रोसेस. बहुत टफ प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, एंड अंडरस्टैंड एंड बिलीव यू मी, विद दीज pool of candidates entering, it's going to be even more tough. Also, how many seats are there? हमें लगता है 1000 सीटें हैं, बट 1000 सीटें होती नहीं है, राइट? मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो पहले ही ये नंबर 400 हो जाता है. अब इन 400 में भी अगर मैं अच्छी सर्विसेज की बात करूं, अच्छी मतलब टॉप सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, IRS, I'll add 2 more, audit account service and railway traffic service. ये इंडिया की टॉप 6 सर्विसेज हैं, टॉप 7 है क्योंकि IRS कस्टम्स भी होता है और IRS इनकम टैक्स भी होता है. सो दीज आर टॉप 7 सर्विसेज ऑफ इंडिया, IRS कस्टम्स, IRS इनकम टैक्स, राइट? इन 7 सर्विसेज की अगर मैं जनरल कैटेगरी की सीट्स की बात करूं तो वो 400 भी नहीं है, दे आर प्रॉब्ली अराउंड 350. And there is a lot of difference between the IRTS and the IAS. तो अगर मैं बिल्कुल टॉप कैटेगरी की सीट्स की बात करूं जिनके लिए हम एक्चुअली कंपीट कर रहे हैं, राइट? टॉप कैटेगरी की, बिल्कुल टॉप कैटेगरी की सीट्स क्या है? बिल्कुल टॉप कैटेगरी है IAS, IPS, IFS, IRS. That's all you actually care about, right? ऐसा है नहीं, this is not true. There are various other services that do a lot of other important jobs, but for us the prestige that we attach to this exam probably comes from these 4 roles, and these 4 roles in the general category will be closed at 300 rank. So now you have to be in the top 300 in the country to get here, and there are people who have already achieved this, who are going to come back and give the exam with you in 2027, and this number might as well be close to 250, 300. हो सकता है 250, 300 तो यही लोग हों जो आपके साथ दोबारा पेपर दे रहे हैं. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट डिफिकल्ट डज नॉट मीन दैट इट्स नॉट डूएबल. आई हैव डन इट माई सेल्फ. जब 2022 में मैं एग्जाम दे रहा था, ये सेम काम 2022 में भी हुआ होगा, तब भी सिलेक्टेड लोगों ने दोबारा एग्जाम दिया होगा, बट स्टिल आई कुड गेट थ्रू, एंड दैट वाज जस्ट माई सेकेंड अटेम्प्ट, स्टिल हैड 4 attempts left, right? So it's doable, but it is going to be difficult. It is going to be a task where it will take everything that you have and probably more. You will spend a lot of nights when you cry,
when you feel alone, when you feel depressed, when you feel that nothing is working out, when you feel that probably this was not the right decision to come to the services, you'd also probably feel that this exam is beyond you. And it is at that moment that I want to be standing by your side. और इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं. We are doing this to remove the barriers in preparation. मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो 2022 में जब मैंने एग्जाम दिया, मैंने उससे 2 साल पहले ढंग से कोचिंग स्टार्ट करी थी. 2019-20 में मैंने प्रॉपरली कोचिंग स्टार्ट करी थी. There were a lot of entry barriers to the coaching at that time. आज भी हैं. अगर आप ऑफलाइन मार्केट, अगर आप सारथी आईएएस को मार्केट से हटा दो, यू वुड रियलाइज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स. मेरे टाइम पे भी वही कंडीशन थी जो आज है. कंडीशन क्या थी कि ऑफलाइन कोचिंग में पैसे बहुत थे. अब fortunately for me, I come from a place of privilege. Both of my parents are doctors, and they could afford to send me to an expensive institution. Although उस expensive institution का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ बाद में, ठीक है. But the fact was simple. Offline was expensive, but ठीक है, फिर भी decent quality. Not good enough for mains for sure. Pre के लिए ठीक है, mains के लिए तो definitely good enough नहीं है. और online में it was affordable, but it was not good enough even for prelims, because the teachers who were teaching there probably did not have enough experience about the civil service exam to teach for the exam. You do not need a subject specialist here. आपको अगर यहाँ इकोनॉमी पढ़ना है, you don't need an economist. You don't need a PhD in economics to teach you. You need somebody who understands what economics is for UPSC. And that gap can only be bridged by somebody who has themselves appeared in the examination and maybe cleared the examination or reached the interview stage. तो मेरे टाइम पे भी कंडीशन सेम थी. ऑफलाइन एक्सपेंसिव, गुड इनफ फॉर प्रीलिम्स, नॉट गुड इनफ फॉर मेंस. ऑनलाइन अफोर्डेबल बट नॉट गुड इनफ इवन फॉर प्रीलिम्स. Understanding this problem and trying to solve this problem is why I came to this industry. So at the start of this orientation session, let me first congratulate you for taking the right decision, because now you are at a place which is not only affordable, उसको side करते हैं, right? Affordability को side करते हैं. You can be sure that the content you read here is good enough for prelims, good enough for mains, good enough for the interview. इससे better content market में है ही नहीं. I can tell you for sure that even the students of these big institutes, so to speak, are studying from us. There are so many students who have come back and told me कि सर मैंने कोचिंग तो ऐसे किसी ORN के बड़े ऑफलाइन कोचिंग से ली थी, बट मैंने फिर आपका राइट स्मार्ट देखा, आपका GS3 देखा, एंड यू विल सी दैट इन द रिजल्ट. 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है UPSC का, 10-12 दिन में. जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको ये सेम चीज दिख जाएगी. Whatever words I'm saying now, they will get validated on that very day. So I'm telling you this right now, you took the right call and you're in the right place. Now I said Saarthi IAS is affordable. Bilkul. It is affordable in terms of money. But that does not mean it is affordable in terms of your time. The most important resource that you are spending here is your time. It's not your money. Money you can still get back. Time you will never get back. These are probably the prime years of your life, the youth of your life, which matters the most. This is where you shape the rest of your life. आई नो पेरेंट्स ये बात आपको 10th क्लास से बोल रहे हैं कि अभी पढ़ाई कर लो फिर सब कुछ सेट है, बट यहाँ एक्चुअली ट्रू है, राइट? आई नो यू वुड से कि सर ये तो हर साल ही बोलते हैं कि एक्चुअली ट्रू है, अब इस बार भी बोल रहे हैं एक्चुअली ट्रू है, तो क्या पता ट्रू हो या नहीं, बट इट इज एक्चुअली ट्रू दिस टाइम. Because you're not just studying for another degree, you're not just studying for another college entrance, you're not just studying to become another student, you're studying to become an officer. And if you're studying to become an officer here, if you're studying to enter one of the most elite jobs in the country, this is what it comes down to. So you know you're in the right place. You are going to spend the best years of your life. It is tough, but you have the best mentors with you. जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने यही सोचा था कि शुरू में 3-4 महीने पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि अगर मेरा कोई एल्डर ब्रदर होता जो सिलेक्टेड होता, जिसको एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होता और वो मेरी हेल्प कर देता, तो ये एग्जाम सॉर्टेड था यार. मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था. That elder brother is standing in front of you. You have me available with you. You have the best teachers with you. You have the best content with you. There is no reason now for you to not clear this exam other than the fact that you fumbled. Now you can fumble because of any reason. तबीयत खराब हो गई, दोस्त की शादी आ गई, भाई की शादी आ गई, घर में प्रॉब्लम हो गई. जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है आज से. It is not an excuse. I would say that I can sympathize with you, I can understand, I can try and help you.
बट जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, राइट? यू आर द जेनेसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम. We will try our best to solve any problem that you have. But the fact of the matter is that to clear this exam, to make it through this exam, it is only the best effort that will prevail. Your best effort and my best effort. एक बात और सुन लो, इस सेशन में भी बहुत सारे लोग हैं. You can see in the chat, a lot of people are here. I am not part, or we are not part together of one Sarthi family. And I don't want to hear this word ever again. कि ओ सारथी फैमिली ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर. नो, ये आपके सबसे बड़े कंपेरेटर हैं, बिकॉज इनके पास भी उतना ही अच्छा कंटेंट है जितना आपके पास है. अगर कोई दूसरे कोचिंग से पढ़ रहा है ना, यू शुड बी हैप्पी कि ठीक है यार, उनके पास तो कंटेंट ही नहीं है, वो तो उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैं उनसे आगे हूँ. बट ये तो आपके साथ हैं, ये तो सेम लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, सेम क्लास देख रहे हैं. सो इफ दीज आर द पीपल विद यू हु आर वॉचिंग द सेम कॉन्टेंट, हु आर looking at the same lectures, reading the same books, they are your biggest competitors. And the worst part, मैं उनकी टीम में भी हूँ, मैं आपकी टीम में भी हूँ और मैं उनकी टीम में भी हूँ. So it is you and me versus UPSC and versus the competition. It is not all of you together. तो ये जो आपस में कमराडरी होती है ना, स्टडी ग्रुप बना लेते हैं, नेहा आ जाओ लेट्स डू ग्रुप स्टडी, ये सब नहीं करना है. Especially if you want to do group study, never do it with the opposite gender. That's just a rule that you should follow. 1.5 years be focused, उसके बाद जो करना है कर लेना, ठीक है? The fact of the matter is, today you take this decision that it is going to be a very tough 2 years, a very difficult 2 years. You have a good mentor with you, you have a great set of teachers with you, you have great content with you, you have all the help you can need, but it will come down to your effort and your hard work. If you are not dedicated and if you are not hardworking, this is not going to work out. मैं आज आपको बता देता हूं, मैं आपको रिजल्ट वाले दिन भी बोलूंगा, अभी जब रिजल्ट आएगा मैं दोबारा बोलूंगा. यूपीएससी सक्सेस इज मे बी 10% luck, 10% Sarthi's hard work with you, but 80% is you. You do this correctly, this will be done correctly, this is my guarantee, and this we can leave up to God. But for people who do the first two correctly, the third one usually follows. So with that mindset, let us now start the orientation session with a fresh notebook in your hand, and I want you to completely understand कि अब हम अगले 1.5 साल में कैसे इस जर्नी को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है? Let's get started. Now, today I'm going to look at a few issues. Firstly, what can you expect from this course? Although this I have broadly told you. What is needed for UPSC CSE? How can you use this course most effectively? We will look at a plan for the next 1.5 years. Then we'll look at what your normal day should look like. Optional subject, when should it be selected? How should it be selected? Note making, is it required? And what is active recall? ये 8 चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है? Other than this, I'll do one more thing. I will give you a small teaching demonstration today, and I'll tell you how interlinkages are to be done. आपने सुन लिया होगा अभी तक YouTube पे बाकी लोगों से, टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज में, कि सर इंटरलिंकेज करनी होती है, राइट? Have a integrated plan for prelims and mains. Interlink the topics. सुना है अभी तक आपने ये? Have you heard this? I'm sure in some or the other topper strategy session, orientation session, YouTube video, planning session, you have already heard this. सुन लिया होगा आपने अभी तक, है ना? Today I will show you how that is done. ठीक है? जो इसका हुआ बना रखा है कि बहुत बड़ी चीज है, Today I'll show you how this is done. ठीक है? चलिए. Now, you are going to be studying from a team of selected people and interview appeared people and nobody else. Anybody who talks to you in this course ever has either cleared the exam or has at least appeared for the interview. उसके नीचे आपसे कोई बात नहीं करने वाला in your entire 1.5 years journey. आप अगर one-on-one mentorship वाले ऑप्शन में हैं, तो even your mentors are people who have given the interviews. ऐसा कोई यहाँ पर आएगा ही नहीं स्क्रीन पे जिसने इंटरव्यू नहीं दिया है, एंड यहाँ पर सिलेक्टेड लोग भी हैं. द फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द सेकंड वन टुक द फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन. ठीक है? तो आपको ये बात समझनी है दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी
and our vision, our endeavor is not only to provide you with good content. ये तो है ही, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, बट दिस इज वेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स, इट डज नॉट एंड विद इट. सो लाइव लेक्चर्स, ग्रेट कंटेंट, PYQ practice, MCQs, regular mentorship, answer writing practice, personal hand holding, personality development, it is all of this in one. आज के बाद आपको कोई भी और कोर्स GS के लिए नहीं लेना है. You don't have to go anywhere else for any other course. Just follow this and you'll be done. इसके बियॉन्ड ऊपर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है. Follow this and you are done. This is it. I want you to write this down and keep this in this notebook in front of you. इसके बियॉन्ड कोई कोर्स मत खरीदना, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा. Everything is included here. You do not need to do anything else. You do not need to do anything else. इसको फॉलो करो, इस मटेरियल को स्टिक करो. Don't need to go beyond this. मटेरियल कलेक्टर मत बनना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने हम आए हैं. This is what you follow. And this is what you execute. First message, and I want this written in everybody's copies. Second, अब एग्जाम को समझते हैं कि एग्जाम में चाहिए क्या. हमारा प्रीलिम्स है इन May 2027 and मेंस है इन August 2027. This is how our exam is going to proceed. Right? Let us understand each component of the exam. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, दिस इज द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स. देख लिया होगा अभी तक आपने. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स. राइट, दिस इज द प्रीलिम्स एग्जाम. आई होप यू ऑल नो द फॉर्मेट ऑल्सो. 100 MCQs, 2 marks each, translating to 200 marks total. And in these 200 marks, for every correct answer you get +2, and for every wrong answer you get -0.66. The cutoff for the prelims exam, ये final उसमें count नहीं होता of course. The cutoff here generally fluctuates around 90 marks. So our aim will be to get more than 100. मुझे चाहिए ही नहीं कि मेरे students यहाँ पे मंडराएं, ठीक है. एंग्जाइटी में कोई नहीं रहेगा. हमारा एम ही है 100 के ऊपर मार्क्स लाना, राइट, ताकि हमें कभी डाउट ना हो कि हमारा प्री हो रहा है या नहीं. द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्रीलिम्स इज द CSAT. CSAT we will deal with. It is covered and included in this course. You don't need to go anywhere else. So again I'm telling you, do not do anything else. This is it. Stick with it here. इसके beyond बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अब किसी भी स्टैंडर्ड बुक को या किसी भी सब्जेक्ट को, आउट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, टू रीड एनी सब्जेक्ट, व्हाट इज द आइडियल अप्रोच? द आइडियल अप्रोच इज दिस, कि पहले आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, कोई भी एनसीईआरटी, जो लेट्स से हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं या जो लेट्स से हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11th एंड 12th की. इससे पहले की मत नहीं पढ़नी है. देन यू विल रीड द स्टैंडर्ड बुक. यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक है एल लक्ष्मीकांत. फिर आप कोई मीन्स की बुक पढ़ोगे, फिर आप कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की बुक पढ़ोगे, फिर कोई रेफरेंस बुक लोगे, जैसे कि बेयर एक्ट ले लोगे या DD बसु ले लोगे, इससे कुछ एडिशन करोगे. फिर आप ट्राई करोगे कि आपकी एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए कि अब मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने अचीव कर ली है. फिर जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव कर लोगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अगर चलो प्रीलिम्स के PYQs करते हैं. आप इनको सॉल्व करोगे. यहाँ पर आप कुछ मिस्टेक्स करोगे, इन मिस्टेक्स को आप अपने नोट्स में ऐड करोगे. फिर आप कुछ और MCQs प्रैक्टिस करोगे. You will practice some more MCQs, right? You will solve these MCQs. जहाँ आप mistakes करोगे, you will add this to the notes as well. And this is how one subject would be prepared without talking of current affairs. अभी current affairs की तो मैंने बात ही नहीं करी है. This is how you would prepare one subject, just one, right? ऐसे आपको 7 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं प्रीलिम्स के लिए. इस एक प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगते हैं. आप 7 सब्जेक्ट 2 साल लग जाएंगे इसी में, बिकॉज 7 × 3 is 21 मंथ्स आपको यहाँ पर लगने वाले हैं ये करने में, अगर आप खुद से करो तो. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो आप खुद नहीं कर सकते. देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज सी वी आर नॉट गॉड ऑर्डेन्ड एक्सपर्ट्स. वी आर ऑल्सो रीडिंग फ्रॉम बुक्स. मैं अगर आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँ, मैं अगर आपको साइंस एंड टेक पढ़ाऊँ, मैं भी किसी किताब से पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ.
तो वो किताब आप भी पढ़ सकते हो। द मेन एडवांटेज ऑफ बीइंग हियर इज दैट वी सेव योर टाइम। एंड हाउ कैन योर टाइम बी सेव्ड? अगर मैंने आपको इस लेवल से नीचे कुछ पढ़ा दिया तो आपका टाइम बर्बाद किया मैंने। एंड दैट इज व्हाट इज मोस्टली हैपनिंग इन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स। यहां ऐसा नहीं होता है। आई गारंटी टू यू दैट द कंटेंट यू रीड हियर विल बी द बेस्ट कंटेंट। माई जॉब हियर इज टू सेव योर टाइम, ताकि ये सारा काम आपको खुद ना करना पड़े। तो अब इस प्रॉब्लम को, जो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपके लिए, वो समझना। जब आपको कोर्स की फिलॉसफी समझ आएगी तो आपको कोर्स यूज करना भी समझ आएगा। व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट? यू हैव लेक्चर्स थ्रू द वीक along with notes in PDF format। ठीक है, ये लेक्चर्स एंड नोट्स, वंस यू सॉल्व दीज लेक्चर्स एंड नोट्स एंड यू आर डन विद दीज लेक्चर्स एंड नोट्स, आपकी सारी स्टैंडर्ड बुक, रेफरेंस बुक के जो भी एडिशनल पार्ट्स थे एंड सारी एनसीईआरटीज कवर्ड है। इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू नॉट गो बियॉन्ड दिस। See, there are some places where teachers will tell you, मैं भी आपको कह सकता हूँ किसी सब्जेक्ट में कि यार ये वाली ना किताबें पढ़ो, राइट, प्लीज रीड दिस बुक। जैसे अभी आदित्य कालिया सर आपके साथ इकोनॉमिक्स करेंगे, ही विल टेल यू कि यू शुड ट्राई एंड रेफर टू द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। दैट डज नॉट मीन इट्स नॉट कवर्ड हियर, बट व्हेन यू रीड अ बुक यू ऑलवेज गेट दैट सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड रीडिंग की हैबिट बढ़ती है, इंग्लिश समझ आती है। वी आर कवरिंग एवरीथिंग हियर। You absolutely don't need to go beyond this. Maybe in the class a teacher might tell you कि सर ये NCERT की किताब है, ये पढ़ के आना ताकि हम क्लास बेटर समझ सकें। It's not like he will not cover this. It's just that it will help you understand things a lot better. But आपको इसके beyond नहीं जाना है। मैं आपको एक्चुअली चैलेंज दे देता हूँ, आप लेक्चर्स और नोट्स किसी सब्जेक्ट के पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको जो स्टैंडर्ड बुक खोलनी है वो खोल लेना, जो रेफरेंस बुक खोल लेनी है वो खोल लेना, जो आपको एनसीईआरटी खोलनी है वो खोल लेना। एवरीथिंग यू विल फाइंड दैट इट इज कवर्ड हियर। सब कुछ यहां कवर्ड होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड हियर। यू विल नॉट नीड टू गो बियॉन्ड दिस। यहां पर आपका जो रीडिंग वाला पार्ट है वो डन है। तो आपका काम क्या है फिर? व्हाट इज योर जॉब? योर जॉब इज शो अप, actually study, show up and study. That is your only job. टाइम पे आओ, क्लास अटेंड करो और एक्चुअली पढ़ाई करो, इधर उधर की बातें मत करो। यू शो अप एंड स्टडी, यू अटेंड द लेक्चर, यू लुक एट द नोट्स, यू डू रिविजन। आई टेल यू हाउ टू प्लान आउट योर डे ऑल्सो। दिस इज योर ओनली जॉब। आपका रीडिंग पार्ट यहां से डन है। इसके बियॉन्ड आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदर देन व्हाट द टीचर्स टेल यू। टीचर्स कैन टेल यू कि प्लीज रीड दिस बुक फॉर conceptual clarity or read this book and I'll explain this topic tomorrow, right? But that's it, done. अब but this was not the whole process. इसके आगे तो और भी कुछ प्रोसेस थी। What was the process after this? The process was कि मुझे तो PYQs भी करने हैं। We help you solve PYQs in class. क्लास में ही PYQ सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होंगे? क्वेश्चन है, टाइमर चल रहा है, राइट, टाइमर इज रनिंग, 1 मिनट का टाइमर है, क्वेश्चन बोर्ड पे, क्वेश्चन आया, आपने ट्राई किया सॉल्व करने का, फिर 1 मिनट बाद, लेट्स से आई एम टीचिंग यू साइंस एंड टेक, आई विल देन एक्सप्लेन कि अच्छा यार देखो ये ऐसे सॉल्व करना था। आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से आप इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हो, यू स्टार्टेड रीडिंग पॉवर्टी, आपने पॉवर्टी का टॉपिक पढ़ा, देन यू वेंट ऑन एंड नाउ सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पॉवर्टी। आपने अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पढ़ा, यू वेंट ऑन एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ unemployment, and all these PYQs are covered in class, ताकि आपको पता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो it has been asked by UPSC before। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्टेप था कि मुझे MCQ प्रैक्टिस भी तो करनी है। What about MCQ प्रैक्टिस? अब ये कैसे होगा? every Sunday you have a test of 25 MCQs। Now this Sunday test of 25 MCQs sorts this out for you.
रेगुलरली टेस्ट दो, रैंकिंग दिखेगी, मार्क्स दिखेंगे, इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो, कहाँ गलती हो रही है वो देखना है। जो इस हफ्ते पढ़ोगे उसका संडे को टेस्ट है, और एमसीक्यू फॉर्मेट में है, यूपीएससी टाइप एमसीक्यूज हम यहाँ करने वाले हैं, तो आपके एमसीक्यूज भी हो गए। नाउ वन मोर एडिशनल थिंग, हाउ डू यू कंसोलिडेट, कि यार सब्जेक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं कंसोलिडेट कैसे करूंगा, हाउ एम आई गोइंग टू कंसोलिडेट। ये भी तो एक मेजर काम है ना, कि कंसोलिडेट कैसे होगा। आफ्टर यू फिनिश द सब्जेक्ट, जैसे आपका अभी सेशन हो रहा है, मेरे साथ आपका दोबारा सेशन होगा, यू हैव सेशंस विद मी आफ्टर एवरी सब्जेक्ट, आफ्टर एवरी सब्जेक्ट यू हैव सेशंस विद मी। एंड यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल लुक एट व्हाट वी हैव रेड, हाउ टू कंसोलिडेट इट, and we will also involve ourselves in the practice of active recall। ये क्या होता है ये देखेंगे। We will also write a few answers together। See, it is pointless to write answers before you finish one subject because आपको holistic understanding of subject नहीं होती, but once you have that holistic understanding, we will also write some answers together। So this is what we are going to do। इसके बीच में you are also going to have some live MCQ solving sessions, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आलस आएगा, अभी आप बहुत एक्साइटेड हो, इन द कोर्स ऑफ 1.5 years यू विल हैव सम लेजीनेस टू से कि यार ठीक है छोड़ो ना, टेस्ट दे देंगे बाद में। तो लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन होगा, देयर विल बी समबडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन है, करो सॉल्व, और हम देखते हैं फिर आप कैसे अटेम्प्ट नहीं करते। सो यू आर सॉर्टेड एट ऑल लेवल्स। तभी मैं कह रहा हूं ये कर लो। बहुत टेंडेंसी होती है कि इसकी और बाद में पढ़ लूं और पढ़ लूं, मत करना वो। यू विल जस्ट एंड अप wasting your time if you try and go beyond and not consolidate this first। Let's consolidate this, इससे ही select हो जाओगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। ये बात मैंने आपके साथ कर ली है। We'll now come to the mains exam। The toughest exam in the world is actually the mains। It's not UPSC as a whole। Prelims आसान होता है relatively। Mains है toughest exam in the world। Why? Because of the way it's held and because of the syllabus। आपने प्री का सिलेबस देखा, मेंस में देखिए यहाँ पर इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी इज ऑल्सो डिफरेंट बट ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, थिंग्स, द एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एस्से पेपर एंड 2 ऑप्शनल पेपर्स। ये सब जो रेड में है ये तो प्री में आता ही नहीं। तो मेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्री। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। जब सब्जेक्ट ही अलग है तो इंटीग्रेट कैसे करोगे प्रिपरेशन। 1750 मार्क्स का मेंस है, इसमें से 1250 मार्क्स ऐसे हैं जो प्री में हैं ही नहीं। हाउ विल यू इंटीग्रेट द प्रिपरेशन भाई, राइट? दीज आर स्पेसिफिक ओनली टू मेंस। तो जो सारथी आईएएस का मैक्सिमम रिजल्ट जनरेटिंग मिशन है कॉल्ड MMP प्लस, दैट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स। राइट स्मार्ट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स। यू विल हैव डेडिकेटेड 6 months ऑफ मेंस प्रेप विद मी एंड आई मेनली एम इन्वॉल्व एट दिस स्टेज। आप सबसे ज्यादा मुझे इस टाइम पे देखोगे एज अ टीचर, एज टीचिंग यू स्टफ, यू विल सी मी मैक्सिमम एट दिस स्टेज बिकॉज सबसे टफ पार्ट यही है एंड दिस इज व्हाट आई हैंडल। 6 months डेडिकेटेड मेंस प्रेप होने वाली है हमारी। तो आपका मेंस भी यहां पर सॉर्टेड है। मेरा काम है आपको सिखाना कि आंसर कैसे लिखना है, राइट? मेंस में हम क्या फॉलो करते हैं इस बारे में बात करते हैं। लेट मी शो यू दिस। मेंस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मेंस में किस टाइप का पेपर हो रहा है? सी देयर आर क्वेश्चंस, एमसीक्यू नहीं है, राइट? एमसीक्यू में क्या होता है, क्वेश्चन और ABCD, एक सही है एक गलत है। ये नहीं है मेंस। मेंस क्या है? Mains is, this is a question that's written, difficult question to interpret, and then there is this page, a blank page here, a blank page here, and now everybody gets to write whatever they think of this question in this limited space, right? इसमें you have to be better than others। गलत सही की तो बात ही नहीं है। It's about a better answer, a better articulated answer, a better researched answer, a better
presented answer. It is about that. So now this is even more difficult to compete with. अब और मुश्किल है, गलत कोई नहीं लिख रहा है, आपको दूसरों से बेटर लिखना है, लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड स्पेस में. तो मेंस में ना 3 लेवल पे चैलेंज आते हैं. सबसे पहला चैलेंज जो आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया मेंस में, बट थैंक गॉड दैट यू आर हियर, इज कंटेंट. If you read bad content, you are out of the mains. Why? Questions are not easy and you have to write your own understanding and interpretation. आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की इंटरप्रिटेशन लिखनी है, राइट? अगर आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग और खुद की इंटरप्रिटेशन लिखनी है, इट डिपेंड्स वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. ऊपर से तो आएगी नहीं. यू विल रीड समथिंग एंड डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. इट विल कम फ्रॉम द कंटेंट दैट यू रीड. तो पहली चीज कंटेंट है. आप देखोगे कि मार्केट में एक हवा बनाया हुआ है कि अरे आंसर राइटिंग का, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. अरे जब आएगा ही नहीं क्वेश्चन तो लिखोगे क्या? व्हेन यू डोंट इवन नो व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल यू राइट? मैं आपसे पूछूं, इज द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फूड इन्फ्लेशन? आप कहोगे सर मुझे डायग्राम बनाना है, वैल्यू एडिशन करना है. पहले येस नो तो बता दो. एंड इफ यू आंसर द येस नो इन एन इनकरेक्ट मैनर, then it does not matter how you present it. So content comes first. You have to read good content. Then you have to learn how to actually structure your answer. ये स्टेप मोस्टली मिसिंग होता है. कंटेंट फिर भी अगर लोग पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे? एवरेज कंटेंट पढ़ेंगे और सीधा टेस्ट सीरीज लिख देंगे. अरे टेस्ट सीरीज में आपको क्या किया जा रहा है? आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है लिखो, और आप लिख रहे हो, और फिर कोई चेक कर रहा है, फिर आप मार्क्स देख रहे हो. बीच का स्टेप कहां है? वेयर समबडी टोल्ड यू कि यार जब क्वेश्चन ऐसा है तो आंसर ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे सब हेडिंग्स आइडेंटिफाई होते हैं, ऐसे डायग्राम बनते हैं, इंट्रो में ये लिखना होता है, जब पॉइंट्स नहीं आते तो ये करना होता है, जब पॉइंट्स ज्यादा होते हैं तो इन पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना होता है, कंक्लूजन में ये लिखना होता है. ये बात आपको कोई बताएगा तब तो आप सीखोगे. आप सीधा अगर यहां से टेस्ट लिखने चले जाओगे पढ़ने के बाद, तो आप जैसे सोचते हो वैसे ही सोचते रहोगे, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी. ना आपका थिंकिंग का तरीका बेटर होगा, ना आपकी स्ट्रक्चरिंग बेटर होगी, ना आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होगी. सो यू नीड टू लर्न आंसर राइटिंग एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट. प्रैक्टिस से आप क्या अचीव करोगे? प्रैक्टिस से आप ये अचीव करोगे कि मैंने सीख लिया है, मैंने कंटेंट भी सीख लिया है, आई हैव लर्न्ड द सब्जेक्ट, आई हैव लर्न्ड हाउ टू राइट एन आंसर. Now I am practicing to do it in the correct time and space, right? If you jump from here to here, which is the case as it happens in most places, you will never make it because this middle part is missing. So when we study for the mains and you get that 6 months of dedicated mains prep, what we are doing is you read the content specifically of every GS paper. So GS1, GS2, GS3, GS4 and SC. And this is the proof that I'm telling you that we don't believe in integrated preparation. आपका अभी इकोनॉमी शुरू हो रहा है, GS3 में भी इकोनॉमी है, बट आप GS3 में इकोनॉमी अलग से पढ़ोगे. You will read economy mains separately because there is no integrated preparation. It is a difficult job to handle. तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे पहले, फिर आप GS1 में हिस्ट्री दोबारा पढ़ोगे, बट नाउ यू आर गोइंग टू रीड इट एट एन एडवांस लेवल फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू विल रीड दीज 5 सब्जेक्ट्स. कौन कौन पढ़ाएगा ये सब्जेक्ट्स? GS1 में वी हैव हिमांशु खत्री सर फॉर हिस्ट्री, वी हैव पल्लवी मैम फॉर ज्योग्राफी एंड प्रणय सर फॉर सोसाइटी. GS2 में वी हैव M पुरी सर एंड मुदित जैन, and Varun Jain sir. In GS3 I will be teaching you GS3 completely. GS4 is by Piyush sir, SA is by Piyush sir. So you are looking at a team of people who are either selected or have appeared in the interview. तो आप इन लोगों से पढ़ रहे हो मेंस का कंटेंट. उसके बाद आपको क्या करना है? आपको समझना है यार कि ठीक है ये मेंस का कंटेंट है. आफ्टर आई हैव रेड दिस मेंस कंटेंट आई नीड टू नो हाउ आंसर्स आर रिटन. उसके लिए यू डू राइट स्मार्ट विद मी. What is the idea behind Write Smart? We solve previous year questions together. कुछ 300 से 400 previous year questions मैं और आप साथ में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, बोलूंगा सोचो तुम इसमें क्या लिखते.
लिखो मत, सोचो तुम इसमें क्या लिखते, पेपर में क्या लिखते, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर इट, एंड देन आई विल टेल यू हाउ वुड आई स्ट्रक्चर इट। मैंने यहां पर कुछ 12 अप्रोचेस डेवलप करी हैं जिससे आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। सो यू डू दिस। अब ये तो PYQs हैं, ये सेम आपको नए क्वेश्चंस में भी ट्राई करना है। फॉर दैट यू डू लॉज विद वरुण जैन सर। यहां पर क्या है, लाइव आंसर राइटिंग सेशन, आंसर राइटिंग है, लाइव क्वेश्चन है, आपको लिखना है, 8 मिनट का टाइम है, सर आपको हिंट दे रहे हैं। आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मैंने ये प्रोग्राम नहीं किया होता ना 21-22 में, तो मैं सिलेक्ट नहीं होता। दैट्स हाउ गुड इट इज। एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो थ्रू टेस्ट। तो तीनों चीजें हैं, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर मेंस। आई होप यू कैन सी द लॉजिक बिहाइंड इट। वील डू ऑल 3 थिंग्स टुगेदर। नाउ मैं तब से कह रहा हूं, यूर रीडिंग द बेस्ट कंटेंट, यूर रीडिंग द बेस्ट कंटेंट। अब मैं प्रूव करता हूं। और मैं ना आपको यहां पर कोई PDF दिखा के प्रूव नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं ना PDF दिखा के प्रूव? बिकॉज आप एक काम करना, आप खुद जाना सारथी IAS के चैनल पे, ठीक है? You go to Sarthi IAS channel, and once you go to our channel, you go to this video, GS3 analysis for mains, ठीक है? आप इस वीडियो में जाना and see what happens here। यहां पर क्या है कि मैंने अपना खुद का GS3 का पेपर एनालाइज किया है, जो मैंने पढ़ाया था फॉर 2025 मेंस, और GS3 का पेपर आया कहां से। 20 के 20 क्वेश्चन दिखाए हैं और अपने नोट्स दिखाए हैं। नोट्स आर ऑफ कोर्स द नोट्स दैट आई मेड फॉर मेंस 2025। तो जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा फॉर मेंस 2027, तो जैसे मैंने मेंस 2025 के लिए पढ़ाया, उसके नोट्स बनाए और पेपर दिखाया। एक बार देखते हैं, आप कहीं भी चले जाओ। ये पहला क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI पे क्वेश्चन आया था, ठीक है? HDI, इनइक्वालिटी HDI, ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये हमारे नोट्स हैं, ये रहा HDI, ये रहा इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। और मैं अपने नोट्स हैंड रिटन ही रखता हूं, मोस्टली मैं खुद लिखता हूं ताकि आपको ना लिखना पड़े, बट इट्स राइट हियर। आगे चल लो। ये क्वेश्चन था अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड फ्री ट्रेड इज एंडिंग इन द वर्ल्ड, बायलैटरलिज्म इज स्टार्टिंग, प्रोटेक्शनिज्म इज स्टार्टिंग, सो व्हाट डू वी डू। ये इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ क्वेश्चन था। दैट डज नॉट मीन दैट इट वाज नॉट कवर्ड। It's right here. What is happening in global trade? How are capital flows running? इंडिया की टैरिफ पॉलिसी क्या होनी चाहिए? ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, इंडियन ग्रोथ विल कम फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन, वी नीड डीरेगुलेशन। एग्जैक्ट आंसर इज इन दीज 5 लाइन्स, ऊपर डिटेल में भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन देख लो यार, यू लुक एट एनी क्वेश्चन। ये पूरी वीडियो 37 मिनट्स की है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फार्मर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होते हैं? हॉर्टिकल्चर, राइट? हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होते हैं? जो फ्लोरिकल्चर के क्रॉप्स होते हैं। देखते हैं, क्या ये कवर्ड था? ये रहा हॉर्टिकल्चर। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, ये रहा फ्लोरिकल्चर। एग्जैक्ट डिस्कशन, सब कुछ, बेनिफिट्स, challenges, way forward, all written along with diagrams that you can directly take to the exam। और आप पूरा पेपर में कहीं भी देख लो। मैं आपको जान के इस बार की PDF नहीं दिखा रहा, कई लोग ऐसे करते हैं बाद में अपनी PDF चेंज कर देते हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, बट बहुत लोग हैं। मैं आपको पुरानी वीडियो दिखा रहा हूं, इसीलिए दिखा रहा हूं। आई कांट चेंज व्हाट्स ऑन यूट्यूब, राइट? जैसे ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है, तो ये रहा भाई इंडिया का एनर्जी जनरेशन और बायोटेक्नोलॉजी में इसकी हेल्प। तो ये रहा इंडिया का एनर्जी का मैट्रिक्स, और ये रहा बायोटेक्नोलॉजी का ग्रीन एनर्जी में यूज। एंड आई कैन स्किप टू एनी क्वेश्चन, मैं रैंडमली वीडियो कहीं भी ले जा सकता हूं। जैसे ये फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, राइट? अब ये फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन देखो, ये रही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सारी डिटेल्स। इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया, डेटा क्या है, ग्राफ आपको ऐसे बनाना है। इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है यहाँ पे। एक्सपोर्ट्स में इनका क्या एडवांटेज है, क्या चैलेंजेस हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस, क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, मेगा फूड पार्क क्या होता है, एक केस स्टडी भी यहाँ पे दी हुई है।
इससे बेटर कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं मेंस के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू एन ओल्ड वीडियो। एंड में देखते हैं, आई विल शो यू अनदर क्वेश्चन। ये देखो, मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। पीस अकॉर्ड्स क्या साइन हुए? टफ क्वेश्चन है, क्योंकि पीस अकॉर्ड्स डायरेक्टली कौन पढ़ता है यार? ऐसे पीस अकॉर्ड्स के नाम कौन याद करता है कि ये वाले पीस अकॉर्ड साइन हुए और ये वाले अग्रीमेंट साइन हुए वगैरह? ठीक है, एक आधा कोई याद कर ले, बट 3-4 एग्जाम्पल पीस अकॉर्ड के ये रहे, चारों लिखे हुए हैं नोट्स में। ये नॉर्थ ईस्ट के इनिशिएटिव्स हैं, ये 5 हमारे पीस अकॉर्ड्स हैं जो हमने किए हैं, एक्सप्लेन्ड भी हैं आगे, एंड कंप्लीट डिस्कशन इज देयर regarding Northeast, the initiatives we have taken, the peace agreements we have taken, and everything around it. और आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन खोल लो, ये वीडियो में मेरा आपका ओपन, लाइक आई हैव दिस ओपन चैलेंज टू यू, यू ओपन एनीथिंग एंड यू विल सी द आंसर्स। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म पे आया था कि 2026 तक सरकार ने एलिमिनेट करने का प्लान बनाया है, तो इसमें क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट डू वी डू हियर? ठीक है, अब आप ये देखो कि किस लेवल तक नोट्स में क्वेश्चन मैच हो सकता है। कि एक तो ये नक्सलिज्म के नोट्स हैं जहां पर मैप्स, डेटा, डायग्राम और एग्जैक्ट चीज लिखी हुई है कि 2026 तक एलिमिनेट करना है, नक्सल मुक्त भारत हमारा टारगेट है, और उसके लिए ये गवर्नमेंट स्कीम्स हम लेने वाले हैं। एक केस स्टडी अलग से दी हुई है, डेटा अलग से दिया हुआ है, कोट्स, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर करंट अफेयर्स, कीवर्ड्स एंड सम वैल्यू एडिशन। पूरा वैल्यू एडिशन का एक अलग से पेज भी है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डोंट गो बियॉन्ड दिस। इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। डू दिस एंड यू आर सॉर्टेड। सो अगेन, like I've told you, this is enough. You are reading the best content. फिर आप राइट स्मार्ट पे जाओगे तो आपको समझ आएगा ये कितनी बढ़िया चीज है। अगर राइट स्मार्ट को भी आपने देखना हो कि राइट स्मार्ट अच्छा क्यों है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे जी का फीडबैक देखना। लुक एट द फीडबैक शी हैज गिवन टू सारथी IAS। इन हर हैंड रिटन फीडबैक शी हैज मेंशन्ड दैट राइट स्मार्ट वाज द कोर्स दैट हेल्प्ड हर द मोस्ट। हैंड रिटन फीडबैक भी है, वीडियो में भी फीडबैक है। ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट शी केम टू सारथी IAS एंड शी सेड दिस, शी इज रैंक 1 ऑफ 2024। ठीक है, तो ये भी देखना, इससे भी आपको समझ आएगा कि आपका मेंस तो सॉर्टेड है। प्री तो करा ही लेते हैं लोग, मेंस भी सॉर्टेड है, आपको इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन टू यू। अब द जनरल अप्रोच ऑफ एवरेज कंटेंट एंड अनकंसोलिडेटेड नोट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडवांस कंटेंट, राइट स्मार्ट, solving PYQs together and having actually consolidated and crisp notes. Now let's talk about the interview. Interview में we have Saloni ma'am to help you. She'll be taking sessions with you for personality development. Personality cannot be developed in one day. It cannot be developed in 2 months. It is a long process. But we'll do that process together as well. So चाहे prelims हो, चाहे mains हो, चाहे interview हो, all of it is happening in this one place. Just stay here, stay focused, keep showing up, keep studying. That is all you need to do. अब one-on-one mentorship की बात हम कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स आप में से GS फाउंडेशन प्लस में हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ सजल सर, who was incidentally the guide to both Shakti and Kanika, both of these rank 1 in IFOS, rank 1 in CSE, both of these were her students, so his students. So we will look at these features as well. जो आप में से जिन लोगों ने GS फाउंडेशन प्लस के लिए ऑप्ट किया है, विद इन द नेक्स्ट वीक और 2 you will have your mentors allotted to you. ठीक है, and every mentor is supposed to call you once every 15 days. So every 15 days you are going to have one call with your mentor, and आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज खुल के अपने मेंटर से बताना। ठीक है, see I am here to monitor everything, not just the subjects that I teach. सजल सर does a good job. सजल सर आपके साथ सेशंस लेंगे, आपको एक ब्रॉड जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको सजल सर से मिलेगी, और जो आपको मेंटरशिप करनी है, one-on-one मेंटरशिप चाहिए, वो यहाँ पर है। एंड दैट टेक द कॉल्स रेगुलरली, टेक द कॉल सीरियसली। मैंने अपने मेंटर्स को स्पेसिफिकली बोला है कि बच्चों को डांटो, तो हो सकता है आपको कभी डांट पड़ जाए, तो टेक इट इन अ गुड स्पिरिट, बिकॉज सी वी आर ऑल डूइंग इट सो दैट यू इम्प्रूव। सो एवरी 15 days you get a call, please attend that call and please attend that seriously.
right? We have a mentorship portal. You will get your login details, credentials and everything related to the mentorship portal in the next 15 days. आपको mentors allot भी हो जाएंगे, ठीक है? अब now let's come to the plan for the next 1.5 years, right? Planning की बात करते हैं. So the plan for the next 1.5 years is like this. We are starting on Monday, which is the 23rd. You start with economy. Then you study economy by Aditya Kalia sir. Then you study history by Himanshu Khatri sir. You study geography by Pallavi ma'am. And you study polity by M. Puri sir. This is where you start out. ये आपका फाउंडेशन है, सबसे एसेंशियल काम है. इस टाइम पे जस्ट फोकस ऑन गेटिंग दिस राइट. If you get your base right, if you get your foundation right, you will never have a problem again, right? So just focus on getting all of this absolutely right. I will keep meeting you. The moment you finish economy, I'll come meet you. When you finish history, I'll come meet you. वो तो है ही, और मुझे पता चल जाएगा आप कितने पानी में. और नाम लेके बात करता हूँ मैं, कि नाम लेके, जैसे सबसे नीचे मुझे भी कृतिका का नाम दिख रहा है, तो आई विल आस्क कृतिका कि ये क्वेश्चन का जवाब दो, और नहीं देंगी तो फिर डांट भी पड़ेगी, ठीक है? सो आई विल कीप मीटिंग यू एवरी मंथ and we finish our base subjects here. Then we move on to MMP plus. So 6 months from August to December, we have a dedicated mains preparation timeline. इस टाइम पे हम मेंस पढ़ेंगे और एंड के टाइम पे थोड़ा सा सीसैट भी यहीं पे कर लेंगे, ठीक है? अब मेरा पहले फाउंडेशन सॉर्टेड हो गया, मेरा बेसिक फाउंडेशन सॉर्ट हो गया, मेरे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हो गए. फिर मैंने मेंस पढ़ा. मीन्स मैंने GS 1 2 3 4 पढ़ा, उसके साथ मैंने राइट स्मार्ट भी किया, मैंने लाइव आंसर राइटिंग सेशंस भी करे. एंड फिर उसके बाद द थर्ड थिंग दैट आई वुड डू नाउ इज कम बैक एंड स्टडी फॉर प्रीलिम्स. यार अच्छा, मैं जनवरी 2027 में पहुंच गया हूं, अब प्रीलिम्स फिर से करने का टाइम आ चुका है. तो एट दिस टाइम आई विल डू साइंस एंड टेक, विच आई विल डू विद यू, एनवायरमेंट विच आई विल डू विद यू. वी विल स्टडी करंट अफेयर्स ऑफ द होल ईयर. पूरे साल का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे. इस टाइम पे क्यों पढ़ रहे हैं सर? करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना होता है. नहीं पढ़ना होता डेली यार, नहीं पढ़ना. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप पढ़ लो. डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट, प्लीज डोंट. न्यूज़पेपर्स पढ़ लो फॉर अंडरस्टैंडिंग. करंट अफेयर्स एक बारी में होगा, 2 महीने में पूरे साल का. सी, करंट अफेयर्स का क्या मतलब है? करंट अफेयर्स डज नॉट मीन कि जो आज हुआ है मुझे आज ही जानना है. नहीं, करंट अफेयर्स का मतलब है कि मेरा एग्जाम है मई 2027 में, और मई 2027 में जो पिछले 1 साल में हुआ है, मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो मुझे तो मई वाले दिन जानना है ना. इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं रोज पढ़ूंगा. रोज नहीं पढ़ना. मैंने अपने पूरे अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू से पहले न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाया, और फिर भी सिलेक्ट हो गया मैं. तो नेसेसरी नहीं है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए. मैं क्यों नहीं लगाया हाथ? ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर कोई खराब चीज है, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता था इससे नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि सारे टॉपर्स बोलते थे. मेरे को 4 घंटे लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, मेरा स्टैटिक ही नहीं हो रहा. तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं नहीं करता. बिना न्यूज़पेपर पढ़े फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 200 में से 115 मार्क्स आए. 87 कट ऑफ था. 28 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं कट ऑफ से. फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो रहा है. तो मैंने कहा यार जरूरत तो नहीं होती इस चीज की. इसलिए मैं आपको वो सेम चीज बोल रहा हूं. पूरे साल के जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं, हम सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. हम करंट अफेयर्स पता है कैसे पढ़ते हैं? आई कैन शो यू अ डेमो ऑफ अ क्लास ऑल्सो. एक करंट अफेयर्स की क्लास शायद सारथी आईएएस के यूट्यूब पे हमें मिल भी जाए. तो आई कैन जस्ट शो यू हाउ करंट अफेयर्स इज ऑल्सो हैंडल्ड, तो आपको एक और बेटर आइडिया होगा. या जैसे ये करंट अफेयर्स की क्लास है, हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं. तो आप करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट देखोगे तो आपको समझ आएगा. जैसे ये बहुत अच्छा मोमेंट है पॉज करने के लिए. अब ये देखो यहाँ क्या हो रहा है. ये करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है, साइंस एंड टेक है. साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स मैं ही आपको पढ़ाऊंगा. जो सब्जेक्ट जिस फैकल्टी से आप पढ़ेंगे उनके करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे. इकोनॉमी करंट अफेयर्स मी एंड आदित्य सर विल टीच टुगेदर, बिकॉज वी आर टीचिंग द सब्जेक्ट टुगेदर. अब ये एक आर्टिकल है, ये पता कब आया था? ये अभी इसी साल की क्लास है, मैंने अभी ली थी जनवरी में. ये आर्टिकल द हिंदू में आया है इन मई ऑफ 2025.
देखो, yeast shows physics can give rise to multicellular life sans mutations. हम पता है इसको कैसे पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल है, इस पे अगर मैं क्लिक, ये तो वीडियो है, इस पीडीएफ पे इस आर्टिकल पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हिंदू का आर्टिकल खुल जाएगा और एग्जैक्ट आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन सर अगर ऐसे पढ़ना है तो फिर हम करंट अफेयर्स बाद में क्यों पढ़ते हैं? हम करंट अफेयर्स बाद में पढ़ते हैं क्योंकि मुझे सारी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग है। आप अभी ये आर्टिकल पढ़ो, राइट, ना आपको म्यूटेशन का मतलब पता, ना आपको मल्टीसेलुलर लाइफ का मतलब पता, यहां पर आर्टिकल पढ़ो, आपको समझ आएगा ब्लड वेसल्स में क्लस्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यीस्ट मेटाबोलाइजेस ग्लूकोज, फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस बिफोर जेनेटिक चेंजेस। अब आपको इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता तो कैसे कवर होगा ये आर्टिकल? आज पढ़ लो न्यूज़पेपर में, कुछ समझ ही नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल, यू विल वेस्ट योर टाइम, एंड दैट इज हाउ आई वेस्टेड माई टाइम। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल डिवाइस दिस सोल्यूशन फॉर यू। व्हाट डू यू डू? आप अभी स्टैटिक पढ़ो, आराम से स्टैटिक पढ़ो, जब स्टैटिक समझ आ जाए फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जनवरी में एक बारी में। ये जैसे मैं अभी जनवरी में पढ़ा रहा था, एक महीने पहले मई 2025 का न्यूज़पेपर आर्टिकल, बट अब मुझे स्टैटिक आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैंने पीवाईक्यूज इतने सारे देख रखे हैं, आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट। अब बैठ के आर्टिकल की ही समरी पढ़ लेते हैं, एंड दीज लाइंस हैव बीन पिक्ड फ्रॉम द आर्टिकल, सो इवन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक और चीज दिखा, ये क्या था, यीस्ट कैन, यही आर्टिकल था ना, ये फिजिक्स शोज यीस्ट कैन गिव राइज टू मल्टीसेलुलर लाइफ, यीस्ट मल्टी सेल्यूलर लाइफ सैंस मतलब विदाउट म्यूटेशंस। आर्टिकल ये आया था द हिंदू में। ये देखो, अब ये कब का आर्टिकल है? 21 जून 2025। तो आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो रहा है। 2025 का आर्टिकल है, जून का। पढ़ हम कब रहे हैं, वीडियो की अपलोड डेट देख लो। हाँ, 2 वीक्स अगो, ये देखो 2 वीक अगो ये वीडियो आई है, 2 वीक अगो ये क्लास ले रहा था मैं। सो यू वुड अंडरस्टैंड दैट हम एक्चुअली सारा करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और डायरेक्टली न्यूज़पेपर से करने वाले हैं। आप अगर ये न्यूज़पेपर आर्टिकल देखोगे, सो यू वुड सी दैट इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द आर्टिकल, लाइंस आर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल, राइट, यहीं से पिकअप करी हुई है लाइंस। तो ऐसा भी नहीं है कि आर्टिकल कवर नहीं हो रहा, बट ऑल योर करंट अफेयर्स इज गेटिंग कवर्ड। व्हेन इज इट गेटिंग कवर्ड? इट्स गेटिंग कवर्ड इन जैन एंड फेब। व्हाई इन जैन एंड फेब? बिकॉज you will not understand the static context before that. आप सिलेबस जब आपको स्टैटिक समझ आ जाएगा तब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर। मेरा ही काम है करंट अफेयर्स कराना, तो डोंट वरी, मैं ही कराऊंगा आपको करंट अफेयर्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, दिख रहा है, सॉर्टेड लग रहा है करंट अफेयर्स का काम। आर्टिकल डायरेक्टली पढ़ रहे हैं हम, कोई समरी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट आर्टिकल न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं। इफ यू आर समबडी हु इज गिविंग द अटेम्प्ट इन 2028, यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेस, स्टिक विद दिस। बस यहां पर दिसंबर तक आपका काम कोई अलग नहीं है, जनवरी से थोड़ा काम अलग होगा कि आपके लिए अगले साल के करंट अफेयर्स ज्यादा रेलेवेंट होंगे। हम जनवरी में एक बार दोबारा बात कर लेंगे। नेक्स्ट 11 मंथ्स इफ यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर 2028, नथिंग चेंजेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हाउ डू यू प्लान आउट योर डेज? How do you plan out your days? From Monday to Saturday, you have classes at 4:30 p.m. पहले तो ये क्लासेस लाइव हैं, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ये बात है कि अभी देखनी है, बाद में देखनी है, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एंड यू कैन वॉच देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ हाउ डू यू प्लान फॉर योर आइडियल डे? एक दिन आपकी लाइफ में कैसा दिखना चाहिए? मैं आपको एक डेली शेड्यूल बना के दिखाता हूं। लेट्स से 4:30 to 7:30 मेरी क्लास है और मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 4:30 to 7:30 मेरी क्लास है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप क्लास को लाइव देखें इफ यू कैन। देखो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में, ऑनेस्टली बताऊं आपको, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में।
लाइव क्लास में बस ये होता है कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। दिस इज द ओनली रीजन आई टेल यू कि आपको लाइव देखनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे खुद लगता था कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर लूंगा। मैंने आज तक एक भी क्लास जिंदगी में लाइव नहीं देखी है एक्सेप्ट फॉर आंसर राइटिंग क्लासेस। आंसर राइटिंग में कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर राइटिंग में अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो तो रिकॉर्डेड मत देखना, कोई फायदा नहीं होता। आंसर राइटिंग इज अबाउट एन एक्टिविटी वी डू टुगेदर। इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइव, यू आर नॉट डूइंग इट। बट एनी अदर क्लास आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर रिकॉर्डेड बिकॉज मुझे पता था मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर लूंगा, राइट? But that came from the fact that I had already cleared NEET with an all India rank of 70 before I came to UPSC prep. I was aware of my capabilities and I knew I'd be able to do it. So for you, I am telling you, if you do not have this confidence in you right now, and that's okay, अभी आप क्लास लाइव देखो, और लाइव देखने में ये भी श्योर है कि आप 3 घंटे में कर रहे हो तो 3 घंटे में हो जाएगा। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए या यूपीएससी के लिए, तब इतने इंस्टाग्राम भी नहीं था, इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, एआई नहीं था, राइट? सो आई वुड रेकमेंड यू वॉच दिस लाइव जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कीप टॉकिंग एंड कन्वर्सिंग विद द टीचर, वो तो ऑप्शन है ही। तो आप लाइव देखो इसको सबसे पहले तो। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर है कि भाई टेक अ स्मॉल ब्रेक आफ्टर दिस। क्लास देखना अचीवमेंट नहीं होती है। लिख लो ये नोटबुक में, अभी लिख लो। वॉचिंग द क्लास इज नॉट एन अचीवमेंट। वॉचिंग द क्लास इज नॉट एन एक्ट ऑफ स्टडिंग। वॉचिंग अ क्लास इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू डू एक्टिवली विच टेक्स एफर्ट। यू आर जस्ट सिटिंग इन अ चेयर एंड वॉचिंग समबडी स्पीक लाइक यू आर राइट नाउ। आपका क्या एफर्ट लग रहा है इस सब में? मेरा एफर्ट लग रहा है। ये एफर्ट इंटेंसिव काम नहीं है। स्टॉप सेलिब्रेटिंग दिस, स्टॉप अचीविंग दिस। एफर्ट इंटेंसिव काम इसके बाद आता है। टेक अ स्मॉल ब्रेक। इफ यू टेक अ लॉन्ग ब्रेक हियर, आपका दिन बर्बाद हो गया। इस आधे घंटे में आपका पूरा दिन डिसाइड हो जाता है। टेक अ स्मॉल ब्रेक, मैक्सिमम ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, एंड फ्रॉम 8 PM नाउ प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। जो क्लास में पढ़ाया उसको स्टडी इट, रिवाइज इट। कोई होमवर्क मिला है तो वो होमवर्क करो। Study and revise. If the teacher has told you to read a particular book, जैसे दिया काले सर ने आपको बोला कि यार ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल एक बार रीड करके आना, फिर मैं कल इसको दोबारा क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, तो रीड इट, अंडरस्टैंड इट। जो क्लास में कराया उसको अब्सॉर्ब करो, थिंक अबाउट इट, नॉट जस्ट कि मैंने पढ़ लिया। सोचो उसके बारे में, ट्राई टू विजुअलाइज इट। इज इट समथिंग दैट आई सी इन माई एवरीडे लाइफ? इज इट समथिंग दैट आई सी हैपनिंग अराउंड मी? ट्राई टू अब्सॉर्ब इट, सिट विद इट, थिंक अबाउट इट। रिवाइजिंग द क्लास डज नॉट मीन कि मैंने क्लास पढ़ी और यहाँ पे ये 4 चीजें लिखी हैं। जैसे मैं आपको रिवाइजिंग और थिंकिंग में फर्क दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, मान लो मुझे रिवाइज करना है। हम कैसे रिवाइज करते हैं? मंडे टू सैटरडे क्लासेस एट 4:30 PM, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। तो क्या समझ आया कि अच्छा यार 4:30 बजे क्लास है, रिकॉर्डिंग होगी। आइडियल डे, आइडियल डे मतलब हर दिन क्या करना है? क्लास देखो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, नोट्स ऐड करो, ठीक है? तो और यहाँ पे लिखा है लेस देन 10%, मतलब ज़्यादा एडिशन होगी नहीं, ऑलमोस्ट नोट्स में वैसे भी 90% चीज़ें कवर्ड होंगी, ठीक है? फिर PYQs नोट्स में दिए होंगे। फिर 2.5 आवर्स क्लास, 3 आवर्स सेल्फ स्टडी, 1 आवर ऑफ एक्टिव रिकॉल, ये लिखा है और मैंने इसको रट लिया। ये होता है स्टडिंग और रिवाइजिंग। अब मैं आपको कह रहा हूँ थिंक अबाउट इट। थिंकिंग अबाउट इट विल बी, यार ये ऐसा क्यों लिखा है? ये सेल्फ स्टडी के बारे में ज़्यादा टाइम क्यों दिया हुआ है सेल्फ स्टडी को? यार ये इसलिए दिया हुआ है बिकॉज जब तक मैं सेल्फ स्टडी नहीं करूंगा मुझे समझ कैसे आएगा? क्लास में तो बस मैं सुन रहा हूं। फिर यार यहां पर एक्टिव रिकॉल लिखा है, ये एक्टिव रिकॉल होता क्या है? लेट मी गूगल इट एंड फाइंड आउट। अच्छा, अब यहां मंडे टू सैटरडे लिखा है, मतलब संडे को कुछ स्पेशल होना है? हाँ, संडे को टेस्ट होने हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। यू डोंट हैव टू रीड इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, स्पेंड टाइम, बिकम अ स्लो रीडर। जैसे बहुत ज्यादा आप YouTube वीडियोस देखोगे कि आपको फास्ट पेस रीडिंग करनी चाहिए, मैं बिल्कुल उल्टा कहता हूं। मैं कहता हूं आपको बिल्कुल स्लो रीडिंग करनी चाहिए। रीड एज स्लोली एज पॉसिबल, बट टेक योर टाइम टू अब्सॉर्ब इट। इफ योर फोकस इज देयर, स्लो रीडिंग का मतलब ये नहीं है एक पेज पढ़ा फिर 2 रील देखी, फिर एक पेज पढ़ा फिर 2 रील देखी, ये नहीं है स्लो रीडिंग का मतलब। स्लो रीडिंग का मतलब है अब्सॉर्ब थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स। 8 PM you start studying after this small break, and maximum by 10:30 you will be done for the day. Now you are done.
स्लीप बाय 12। 12 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, एटलीस्ट मोस्ट लोगों के केस में, आप एक्सेप्शन हो सकते हो, मोस्ट लोगों के केस में 12 बजे के बाद हार्डली पढ़ाई होती है। स्लीप बाय 12, वेक अप एट 7-8, spend a good 7-8 hours sleeping. You should have the time to recharge your memory and your brain. You are doing an effort that is mainly mental, so give time to your brain and mind to relax. When you wake up at 8 p.m, 8 a.m, forgive me, 8 p.m मत उठना कभी भी लाइफ में। In the next 30 minutes, get on your study table. This is the second 30 minutes that decides your day. 8 बजे उठे, 8:30 तक स्टडी टेबल पे आके 1 घंटा करना है एक्टिव रिकॉल, 8:30 to 9:30। और इतनी ही कमिटमेंट है जो मेरे को आपसे एक दिन में चाहिए। 4:30 to 10:30 एंड देन 8:30 to 9:30 AM इन द मॉर्निंग। 9:30 to 4:30 आप फ्री हो मेरे साइड से, अगर आप ये काम ढंग से कर रहे हो तो, ठीक है। फ्रॉम माई साइड यू आर फ्री। अब ये 8:30 to 9:30 में क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। क्या होता है अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपकी जॉब मोस्टली इसी टाइम पे है, इट इज फ्रॉम 9 to 5 ओनली मोस्टली, ठीक है। आपको एक्चुअली 8 AM to 6 PM लग जाते होंगे, मोस्ट जॉब्स में इंडिया में 8 to 6 का टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं। आप ये 4:30 की जगह रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, 4:30 की जगह स्टार्ट करो 6:30, यू स्टार्ट एट 6:30, यू कंटिन्यू टिल 9:30। आप अगर रिकॉर्डेड देखोगे और डिसिप्लिन में देखोगे तो 3 घंटे भी नहीं लगेंगे। आप ब्रेक्स को स्किप कर सकते हो, आप कई पार्ट्स 1.5 पे देख सकते हो, बट चलो आपको 3 घंटे भी लग गए। बट देन देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेडिकेशन एक्स्ट्रा आपको ही दिखानी पड़ेगी। आप जॉब कर रहे हो, जॉब से आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है। इफ यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ डूइंग अ जॉब, यू विल ऑल्सो हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ डूइंग अ जॉब। 9:30 तक पढ़ो, then then I would say you should sleep. Try sleeping by 10. Why am I saying this? I want you to sleep at 10 and wake up at 5 or wake up at 4:30. Try and wake up at 4:30. और अगर आप 4:30 बजे उठ पाते हो, if you are able to wake up at 4:30 AM, then spend the first 3 hours of your day studying and active recalling. यहां पढ़ाई करो सुबह 5 से 8 में। ऑफिस से आने के बाद एक्टिव पढ़ाई नहीं होगी, मन ही नहीं करेगा। लेक्चर देख सकते हो, एक्टिव पढ़ाई तब होनी चाहिए जब ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव है, इन द मॉर्निंग 5 to 8, राइट। यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, फॉलो दिस, अदरवाइज यू फॉलो दिस नॉर्मल शेड्यूल। अब दिस इज योर आइडियल डे एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इट। अब बात करते हैं व्हाट इज एक्टिव रिकॉल। सैटरडे संडे की बात कर लेते हैं पहले। संडे को आपको होता है वीकली टेस्ट, 25 MCQ का टेस्ट है, हाफ एन आवर लगेगा आपको टेस्ट करने में, 30 मिनट्स का काम है। बाकी संडे 30 मिनट्स ऑफ टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस कैसे करना होता है वो भी बताऊंगा इन अ फ्यूचर सेशन। 30 मिनट्स ऑफ टेस्ट, 30 मिनट्स ऑफ एनालिसिस। इसके बाद आप पूरे दिन संडे को मेरे साइड से फ्री हो। ओनली इफ यू हैव नो बैकलॉग थ्रू द वीक। अगर बैकलॉग नहीं है तभी आप फ्री हो। संडे 1 घंटा सुबह काम है, 9 बजे शुरू करो, 10 बजे संडे को फ्री हो गए आप सुबह, और पूरा संडे फिर आपका, जो करना है करो, घूमो फिरो, मजे करो। अगर आपने पूरे हफ्ते मेहनत की है तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी हार्श विद योर सेल्फ। अगर मेहनत नहीं करी है तो ब्रेक नहीं मिलेगा भाई। ब्रेक इज नॉट योर राइट, ब्रेक इज अर्नड। यू आर एंटाइटल्ड टू नथिंग, एवरीथिंग इज अर्नड। ओके। सैटरडे को every 15 days we usually have doubt resolution sessions. जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप वैसे क्लास लाइव नहीं अटेंड कर सकते तो ये क्लास जरूर लाइव अटेंड कर लेना आपके डाउट रिजॉल्व करने के लिए, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ डन, आगे चलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आएंगे, नोट्स पे भी आएंगे, बट लेट मी फर्स्ट टॉक टू यू अबाउट एक्टिव रिकॉल। एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन मेथड टू इंक्रीज योर मेमोरी, ठीक है। द वर्स्ट 2 ways टू स्टडी, सबसे खराब
वो होते हैं नोट मेकिंग एंड हाईलाइटिंग। एक बुक है मेक इट स्टिक बाय अ psychological researcher by the name of Peter Brown. Peter Brown has studied memory for 20 years. And through a series of studies he has found out कि note making और highlighting से कोई घटिया तरीका नहीं है याद करने का. And that is what we've been taught in our schools. Allow me to change that for you. This is my job to change it for you. मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी, आज की क्लास, तो स्लाइड पे 8 चीजें लिखी थी. There were 8 things written. Tell me those 8 things that I said I would start the class with. कि आज की क्लास में हम ये 8 चीजें डिस्कस करेंगे. बताओ क्या था वो? What did we start with? 8 चीजें लिखी थी ग्रीन और येलो में, 4 यहां 4 यहां. क्या थी वो? बताओ. नोटबुक मत देखना अगर लिखा हुआ है नोटबुक में तो. लाइव क्लासेस पीवाईक्यू लिखा हुआ था फर्स्ट स्लाइड में. व्हाट यू नीड टू डू लिखा हुआ था. हाउ टू डिसाइड ऑप्शन लिखा था या व्हेन टू डिसाइड ऑप्शन लिखा था. अबाउट जर्नी लिखा हुआ था. हाउ टू टेक मैक्स बेनिफिट लिखा था क्या. एक्सपेक्टेशन, एग्जाम अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड्स थे फर्स्ट स्लाइड में. अब देखो, डजंट मैटर आपको याद आया या नहीं. अंडरस्टैंड दिस. आपने अभी ही पढ़ा है. इट्स नॉट इवन बिन 1 आवर, मैक्सिमम 1 घंटा हुआ है ये करते हुए हमें. अगर हम बुक बंद करके याद करते हैं तो ऐसे याद होता है, हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं. अब मैं आपको दिखाता हूं याद किया कैसे जाता है. मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता था कि आपको स्लाइड देता, उस स्लाइड में ऐसे यहां पर 4 चीजें लिखी थी और यहां 4 चीजें लिखी थी, और मैं आपको कहता इसको याद करो. तो आप क्या करते, यू वुड हैव ट्राइड टू मग दिस अप. कोई इसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेता. अब हमने क्या किया, हमने खुद को गलती करना अलाउ किया कि मैं देखूंगा नहीं, मैंने एक बार देखा हुआ है ना, ठीक है यार देखते हैं मुझे कितना याद है, मुझे कितना याद है देखते हैं. लेट मी मेक अ मिस्टेक. हमें बचपन से बताया गया कि गलती करना गलत है. गलती करो, स्कूल में टीचर डांट रहा है, घर पे पेरेंट्स डांट रहे हैं, करो गलतियां, पेपर में मत करो, यहां करो. जितनी गलतियां करोगे उतना ज्यादा याद होगा. The more mistakes you do, the more you will remember. Right? And this is how you handle this. And this is how we teach you in this course. इसी कोर्स में हम आपको यही चीजें सिखाते हैं. करो गलतियां. अब मुझे 8 चीजें याद करनी थी. मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार मुझे क्या क्या याद आ रहा है. मुझे 2 याद आ रहे हैं, 3 याद आ रहे हैं. ठीक है, अब मैं आपको स्लाइड दोबारा दिखाता हूं. पढ़ो. अब पढ़ो स्लाइड को दोबारा एक बार. What can you expect from this course? What is needed for UPSC CSE? How to use this course most effectively? Planning for next 1.5 years. Daily planning and targets. Optional subject when and how. Note making, active recall. यही लिखा है. अब आपने कुछ गलतियां करी होंगी. अब आप दोबारा पढ़ो. आपका ऑटोमेटिक फोकस कहां जा रहा है. आपका ऑटोमेटिक फोकस वहां जा रहा है जो आपको याद नहीं आया. राइट? आपको मान लो ये पॉइंट याद नहीं आया, तो आपने सबसे पहले यही पॉइंट देखा होगा कि यार शिट ये लिखा था, मेरे को तो पता था ये लिखा है बट मैं भूल गया, है ना. अगर आपने ये वाला पार्ट मिस किया होगा, डेली प्लानिंग एंड टारगेट, तो आपका फोकस यहां जा रहा होगा कि यार ये तो मुझे याद आ गया था, ये मुझे याद नहीं आया था. And this is how you revise, because now automatically you are focusing on the points that you would have forgotten otherwise. And आप उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हो जो आप भूले हो, तो आपकी मेमोरी कंसोलिडेट हो रही है. When you saw this for the first time, there were 8 points, your brain probably registered 4 of them.
योर ब्रेन रजिस्टर्ड 4 ऑफ देम प्रॉपरली। हो सकता है ये आपको जो ब्लू में लिखे हैं ये चारों आपको याद थे, बाकी 4 आपको भूल गए थे। अगर अब मैं नोट मेकिंग और हाईलाइटिंग ही करता रहूंगा, माई ब्रेन विल कीप फोकसिंग ऑन दीज 4। सबका कुछ ना कुछ कॉग्निटिव बायस होता है। इफ आई रीड द फर्स्ट 4 एंड आई कीप रीइंफोर्सिंग द फर्स्ट 4, मुझे 4 ही याद रहेंगे। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली जो हम करते हैं उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 4 याद रहे, नोट्स में भी यही 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटिंग भी इन्हीं 4 की हो रही है, बात भी इन 4 की हो रही है। अगर बाकी 4 से क्वेश्चन आ गया तो हमें कुछ नहीं आता। मैंने इस प्रोसेस को डिस्टर्ब किया। मैंने कहा मैं एक बार पढ़ता हूं, तब भी मुझे 4 ही याद रहे। फिर मैंने कहा अच्छा बताना कितने थे, ब्रेन ने 4 याद किए। तो अब ब्रेन को पता चल गया कि भाई 4 और भी तो मिसिंग थे, और अब मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया। Now automatically brain is focusing on the 4 that I did not know the first time. Result क्या हुआ, अब मुझे 8 के 8 आते हैं। And this is the difference between an aspirant who makes it and an aspirant who doesn't. समझ रहे हो? कई बार आपका ब्रेन हेलुसिनेट भी करता है कि यार यहां पर थोड़ी लाइव PYQs लिखा हुआ है, तो समझ आया अच्छा नहीं यार ये था, आई एम मिस रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट। अब ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, दिस इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। ये मैटर नहीं करता यहां पे क्या लिखा है, बट आपके सब्जेक्ट्स में मैटर करेगा, आपकी किताबों में मैटर करेगा कहां पे क्या लिखा है। समझ आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन? दिस इज हाउ यू डू एक्टिव रिकॉल एंड दिस इज द डिफरेंस यू गेट हियर। मैं आपको तभी कह रहा हूं यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट? अब one more thing, I'm not done yet. I'll take your questions, but I'm not done yet. Hold on, I'm not done yet. I'll open the chat, don't worry, I'll take all your questions. अब one more thing, did you see this phenomena happening? अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार मेरे को तो ना ये याद ही नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया। कोई बात नहीं, you will understand your mistake and correct your mistake. Active recall is not just book बंद करके याद करना, it is book बंद करके याद करना and then opening the book and focusing on your mistakes. I read this class today, let me close the book and see मुझे आज क्या पढ़ाया गया। आज मुझे मेरी फर्स्ट क्लास थी इकोनॉमिक्स की, let me try and see कि इकोनॉमिक्स में मुझे क्या पढ़ाया गया। What was I taught in economics? Let me try and figure out. मैं एक पेज पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ना मैं कोई बुक खोल रहा हूँ ना मैं नोट्स खोल रहा हूँ, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ मुझे ये पढ़ाया गया। फिर मैंने अपने नोट्स खोले, मैंने आदित्य कालिया सर के नोट्स खोले, मैंने देखा अच्छा ये वाला पार्ट तो मैं भूल ही गया था, ये तो यहाँ पे आना चाहिए। ये वाला पार्ट तो मैं भूल ही गया था, ये तो यहाँ पे आना चाहिए। ये वाला पार्ट मैं भूल गया था, ये तो यहाँ पे आना चाहिए। दिस इज हाउ आई डू एक्टिव रिकॉल। टेस्ट योर सेल्फ एवरी डे एंड डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, अब आते हैं आगे। टू मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, बस उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। ऑप्शनल एंड नोट मेकिंग। Optional subject, my simple advice to you is, right now, अभी a lot of information has been given to you. I will take another session with you. मैं आपके साथ एक और सेशन लूंगा. This is not something you can decide in 30 minutes. Simple advice to you is, take your time. After your marriage, this is probably the most important decision in your life. First most important decision is who you decide to marry. Second most important decision is what optional you take in UPSC Civil Services exam. So take your time. Don't rush this decision. One rushed wrong decision right now can probably cost you 3 years in the future. So please take your time. That's all I'll say for now. आप नहीं हैं patient, आप में नहीं है time wait करने का, तो by all means go ahead and decide. But my recommendation would be that you take your time. अब we'll come back and take an optional session separately. Note making. Firstly, why do we do note making and how do we do it? Please understand this is obviously going to be subject specific. For every subject, there is going to be a different approach. So this is an approach that you follow as per the teacher teaching you.
कोई एक स्टैंडर्ड रैंडम नोट मेकिंग प्रोसेस नहीं है यूपीएससी का. कुछ प्रिंसिपल जरूर हो सकते हैं, बट यू फॉलो द सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच. Secondly, why are we doing note making? We are doing note making so that it reduces our time of revision. That is it. If it has to reduce our time of revision, it has to reflect our brain's understanding. If it has to reflect our brain's understanding, it has to be done by you. Please do not borrow other people's notes. Notes are a reflection of your understanding, how you have understood a topic. वो लिखना है आपने, राइट. थर्डली, ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है. आप एक बार नोट्स बना के ये नहीं सोच सकते कि नोट्स बन गए और खत्म. बिकॉज नोट्स क्या हैं? दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. इफ यू से आई एम गोइंग टू मेक नोट्स ओनली वंस, if you say I am going to make notes only once, you are saying that you will understand one thing once and then your entire life, that is how you are going to think about it. Simple example लेते हैं. Let's talk of politics in India. I am not going to name any political party, but what you thought about political parties 10 years ago and what you think now, has your opinion not changed? Has your ideology not changed? If your understanding changes, your notes will also change. It is not a one-time process. And since it is not a one-time process, please don't try and make them very beautiful. कई लोगों को होता है कि बस मैं मोती ही लगाऊंगा पेज पे, जब तक ये डायमंड जितना सुंदर नहीं होगा तब तक ये मेरे नोट्स नहीं कहलाएंगे. प्लीज ये काम मत करना. मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, जो बोर्ड पे हैंडराइटिंग है इससे ज्यादा गंदी है नोट्स में. बोर्ड पे फिर भी ठीक लग रही होगी आपको, नोट्स में तो बहुत गंदी है, क्योंकि वन टाइम प्रोसेस है ही नहीं. वो इम्प्रूव होंगे, वो चेंज होंगे, वो उन्होंने होना ही है. टाइम जितना कम इन्वेस्ट करो उतना बढ़िया है. एक दो एडवाइस मैं आपको दे देता हूं. हद मचा के मैक्सिमम 3 कलर्स. मैक्सिमम 3 कलर्स. इफ पॉसिबल मेक देम डिजिटली. डिजिटल में 2 ऑप्शन होंगे आपके. एक तो आप आईपैड वगैरह पे खुद एप्पल पेंसिल से लिखो, इस टाइप का ऑप्शन होगा. एक होगा कि आप लैपटॉप पे टाइप करो. दोनों ही ठीक है. टाइपिंग से बनाओ या हैंड रिटन डिजिटल बनाओ, दोनों ठीक है, जो आपको सही लगे. दिस इज प्रेफर्ड बाय. इसमें ऐड करना आसान होता है, ये खोएंगे नहीं. बट कई लोगों को नहीं पसंद आते डिजिटल नोट्स. अगर डिजिटल नोट्स पसंद नहीं आते, मेक देम ऑन A4 शीट्स. प्लीज डू नॉट यूज नोटबुक्स. नोटबुक होती है स्ट्रैटेजी वगैरह लिखने के लिए. ये नोटबुक वाले काम मत करना प्लीज. क्यों भाई? एडिशन करनी पड़ेगी, चेंजेस करने पड़ेंगे. नोटबुक में कहां से आप स्पाइरल के बीच में निकालोगे या डालोगे फिर से पेज, फिर स्टिकी नोट्स लगाओगे, फिर दिक्कत होगी. या तो A4 पे बनाना बेस्ट है कि आप डिजिटली बनाओ. डिजिटल में क्या होता है कि आप उसको लो, आप PDF मिलती है यहां से, उस PDF को लो, उसके बाद या तो टाइप करो या आईपैड पे उसको मार्क करो, वो बेस्ट रहता है. बट नॉट एवरीबडी लाइक्स इट, तो A4 पे कर लो. तीसरे पे मत जाना. डोंट गो बियॉन्ड दिस. ठीक है, इसके बियॉन्ड मत जाना. ओके. अब लास्ट थिंग, ये तो सारी बातें हो गई. ये तो सारी बातें हो गई कि what you will get, what you are supposed to do, etc. etc. Now let me discuss one more thing, which is what do I expect from you. मेरी भी कुछ expectations होंगी आपसे, right? This is not a one-way delivery. If you are coming here, I have some expectations from you, and if those expectations are not met, especially if some rules are violated, I will not hesitate from chucking you out from here. I know that the service that I'm offering is the best in the country. If I feel you are not up to the mark, I will remove you. I'll refund all your money. I'm not here for your money. मैं आपको हो सकता है 6 महीने बाद मुझे लगे कि नहीं यार, you are not doing a good job. I will remove you from the course and I will refund you all your money. आपका सारा पैसा वापस कर देंगे. ठीक है? But you can be removed. Don't get complacent. इस बात को याद रखना. See, if we refund all your money, फिर आप भी कुछ नहीं बोल पाओगे. एंड पैसे हमें नहीं चाहिए. It's fine.
हमें ऑलरेडी इनफ सीरियस स्टूडेंट्स मिल जाते हैं. We have more than enough serious students, and those are the students I care about. So I have something I expect from you as well. The first is discipline. जब चैट बॉक्स खुले, जब आप टीचर्स से बात करो, always be respectful. You are going to become a future bureaucrat. Behave like one. Right? आपको मेल्स करने को बोला जाएगा, कभी डाउट फॉर्म लिखने को बोला जाएगा. मैं आपको जनरली अपने कोर्सेज में मैं एक डाउट फॉर्म बनाता हूं ताकि सबके डाउट्स इजीली एड्रेस हो सकें. मुझे डाउट फॉर्म में डाउट लिख रहा है कोई, सर आपकी शर्ट्स बहुत अच्छी हैं, अगले दिन निकाल दूंगा मैं कोर्स से. ठीक है, इस काम के लिए आए हो तो मत आओ ना यहाँ पे. ये सब नहीं चाहिए मुझे. आई वॉन्ट वेन यू राइट अ डाउट, यू से व्हाट इज द आइडियल वे टू राइट अ डाउट. यू से लेट्स से साइंस एंड टेक हो रहे हैं, सब्जेक्ट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी, सब टॉपिक क्रिस्पर cas9. Then you write your doubt. How can a bacterial system be used in humans? This is the way I would like to see a doubt from a future bureaucrat. Well classified, formally articulated, respectful, in a right format. ऐसे लोग बहुत कम हैं, बट ये उन 750 में जरूर हैं जिनका सिलेक्शन होता है. With one message that you write to me, I can tell you what your attitude is. I have seen enough messages from students. This is the first expectation. When you're talking to me or you're talking to any of my teachers here, right? Assume that you are being watched. If you are respectful, you are, in discipline, आप जितने questions पूछेंगे उससे ज़्यादा ही जवाब देंगे, उससे ज़्यादा help करेंगे. But if you go down the path of disrespect, I will remove you and refund all your money. राइट मुझे उसके वो नहीं है, आपको वापस एंट्री नहीं देंगे सारथी आईएएस में, वो मैं श्योर हूँ. और मैं ये भी श्योर हूँ कि विदाउट दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड. सो यू विल नॉट गो डाउन दैट पाथ. दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन. सेकेंड, आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू. वॉट इज द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट? कमिटमेंट मीन्स कि सर आपने बोला है मंडे टू सैटरडे क्लास है और संडे को टेस्ट है और मुझे इतना काम करना है तो मैं करूंगा. इट इज नॉट एज इफ आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है यार देख लेंगे, भाई की शादी है वो अटेंड कर लेते हैं, फ्रेंड का बर्थडे है वो अटेंड कर लेते हैं. नहीं. फ्रॉम नाउ टिल यू क्लियर द एग्जाम इन योर लाइफ, यूपीएससी कम्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एवरीथिंग इज सेकेंडरी अदर देन द हेल्थ ऑफ योर फैमिली एंड योर ओन हेल्थ. हेल्थ इशू हो तो मैं मान लूंगा, उसके बियॉन्ड जो भी आपकी लाइफ में लेजर एक्टिविटीज हैं उनको यूपीएससी के नीचे प्रेफर करना. एंड लास्टली, एंड दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन, दिस इज समथिंग दैट विल ऑटोमेटिकली कम. आई वुड जस्ट वांट यू टू हैव दिस एज एन अजम्पशन इन द बिगिनिंग, बाद में हो ही जाएगा. ट्रस्ट करो थोड़ा. एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं लोग यहाँ पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको बता रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो. 1 महीना ट्रस्ट कर लोगे, फिर पीवाईक्यूज देखोगे, बाकी कोचिंग के बच्चों को देखोगे आप कितना आगे हो उनसे, तो फिर आप वैसे ही समझ जाओगे. शुरू में थोड़ा सा ट्रस्ट करो. जो भी कर रहे हैं सोच के कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग इट फॉर यू. ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड आई विल एंड दिस सेशन बाय यू कमिटिंग टू मी दैट यू विल follow these 3 principles, and then I'll take your questions. This is as important as what I commit to you. ठीक है. Now you can ask me whatever questions you have. यार पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में कोई पूछ रहा है. एक्चुअली एक काम करते हैं, what I'll do is I'll give you 1 minute टाइम. 1 मिनट का टाइम है. आपको जो डाउट टाइप करना है एक बारी में टाइप कर दो, उसके बाद मैं चैट बंद करके वो सारे डाउट्स एड्रेस कर दूंगा. 50 सेकेंड्स है. प्लीज बार बार स्पैम मत करना. राइट, प्लीज डोंट स्पैम कंसिस्टेंटली. एक बार अपना डाउट अगले 45 सेकेंड्स में टाइप कर दो. ऑल राइट, आई एम जस्ट क्लोजिंग द चैट नाउ. ओके, नाउ आई विल एड्रेस व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड. ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, लेट मी एड्रेस देम. आई एम स्कैर्ड. सिमरन, प्लीज बी स्कैर्ड. व्हेन यू आर स्कैर्ड यू विल वर्क हार्डर.
Book list पे चिराग, I've already made a video. I've made a video on the book list for the exam. Book list for you is सारथी IAS lectures and notes. मैं तब से वही बात कह रहा हूं, और बुक्स पे मत जाओ, ये पढ़ लो, ठीक है? Yes, Jessica, that's not a problem. खुशी मेहता, we'll have a session on group mentorship also very soon. Don't worry. Group mentorship is with me. मेरे साथ ही तो है आपकी group mentorship as a group. So we'll have that also. Don't worry about it. Approach for note making, like I said, Shivam, note making is done for each subject separately. So you should ask about note making from the teacher teaching that subject. I can tell you how to make notes for GS3. I can tell you how to make notes for science and tech environment. When you start your classes with Aditya sir, the first class will be the orientation class of economics. And let him tell you, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है, कि उस सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनते हैं, राइट? सागर, आई टोल्ड यू आई विल टेक अ सेशन ऑन ऑप्शनल सेपरेटली, तो यहाँ मैं ऑप्शनल के डाउट्स नहीं एड्रेस करूंगा. सात्विक, you are a working professional. Please focus right now on GS. I'll take a session separately on optional and how to manage it and when to do it. Ideal routine for college student is similar to that of a working professional. The only thing I will say for college students here, देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स में क्या होता है ना, उनकी जॉब में उनको जाना होता है और वहां पर एक्चुअली काम हो रहा होता है. आप कॉलेज में हो, हम सबको पता है इंडिया में कॉलेज कैसे होता है, तो मैंने भी ऐसे ही अटेंड किया है. प्रायोरिटाइज यूपीएससी. जब लग रहा है पढ़ाई में पीछे हो रहे हो, मत जाओ कॉलेज. कॉलेज की क्लास तो आप अटेंड वैसे ही नहीं करते, करते भी हो तो कम करते हो. कॉलेज आप जाते हो मस्ती के लिए, उस मस्ती को कम करके यूपीएससी को अपनी लाइफ में एक वेटेज दो. ऑप्शनल डेमो क्लासेस, सर श्रुति, ऑप्शनल डेमो क्लासेस हमारे YouTube पे अपलोडेड हैं वेरियस सब्जेक्ट्स की. एक क्लास मैं आपके साथ लूंगा थोड़े टाइम बाद. आई जस्ट वांट यू टू गेट कंफर्टेबल ऑन हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शनल. तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा, फिर आप उन टीचर्स की डेमो क्लासेस देख लेना एंड यू कैन डिसाइड. लैंग्वेज पेपर में आपको अलग से कोई पढ़ाई नहीं करनी होती है. कभी खोल के देखना यूपीएससी का लैंग्वेज पेपर. यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर द लैंग्वेज पेपर सेपरेटली. लैंग्वेज पेपर में आपको 300 में से 75 मार्क्स लेने होते हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू गेट इन द लैंग्वेज पेपर. नोबडी शुड स्पेंड टाइम स्टडिंग ऑन दिस सेपरेटली अनलेस आपकी लैंग्वेज बहुत कोई वीक है, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी. इतने मार्क्स अगर आप पेपर बस कंप्लीट करके आ जाओगे गंदी लैंग्वेज में भी तो भी आ जाएंगे. क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, तो हम इस पर फोकस नहीं करते ज्यादा. डू वी नीड टू डू नोट मेकिंग ड्यूरिंग द क्लास? श्री विद्या, ये आपको हर टीचर बता सकता है. जैसे मैं अपनी क्लास में रनिंग नोट्स के लिए बोलता हूं, तो जो आदित्य कालिया सर कहेंगे उसको फॉलो करते हैं. ऑप्शनल के कोई डाउट्स मैं लूंगा अभी राज, ऑप्शनल बाद में एड्रेस करूंगा. दिव्या रंजन गिरी, आई कैन ओनली टेल यू दैट इफ यू वर्क योर हार्डेस्ट, आई विल वर्क माई हार्डेस्ट. We'll try our best, but I can't guarantee that we'll be able to make it. ये रियलिटी है, ये अनसर्टेनिटी है, and we have to live with it. हम अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे तो हमारे बहुत अच्छे चांसेस होंगे. मोहम्मद मुमताज, मैंने एड्रेस किया तो है कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू कैन गो फॉर अ रिकॉर्डेड सिस्टम, बट हाँ सैटरडे वाला जरूर अटेंड कर लेना. तेजस, हाउ कैन आई सेंड माई रिटन आंसर्स टू गेट देम चेक्ड? विल कम टू दैट व्हेन वी आर स्टडिंग मेंस. अभी तो हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, जब हम मेंस वाले टाइम पे आएंगे आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. एक इवैल्यूएशन पोर्टल है सारथी आईएएस का, उस पर यही काम होता है. इफ योर टारगेट इज इन 2028 टिल डिसंबर, फॉलो दिस कोर्स एज इट इज. दिसंबर के बाद थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, वो देख लेंगे. टिल डिसंबर फॉलो दिस कोर्स एज इट इज. ठीक है. हाउ टू मेक नोट्स डिजिटली? यार बहुत सारी तरीके हैं. या तो आप एवर नोट या वन नोट यूज कर सकते हो अगर आप लैपटॉप पे बनाना चाहते हो तो. यूट्यूब पे देख सकते हो हाउ टू मेक नोट्स यूजिंग एवर नोट और वन नोट. ये ऑप्शंस हैं. अब तो एआई आ गया, तो एआई बेस्ड भी एक नोटबुक एलएम करके भी कुछ है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे नोट्स बनते हैं. अदरवाइज अगर आपको आईपैड पे बनाने हैं तो आईपैड पे जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ उसका नाम है गुड नोट्स. एक और ऐप है जिसका नाम है नोटेबिलिटी,
इनमें से भी आप कुछ पिक कर सकते हो. दिस इज हाउ यू मेक नोट्स डिजिटली. Anshika is asking, sir, I am doubtful. Only relying on Sarthi IAS is enough. I am fearful. आप कुछ और ट्राई करके देख लो मैम. अभी रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट वाले दिन देख लेना, सारा आपका डाउट तो खत्म हो जाएगा, मैं श्योर. नितिशा विल कम टू इट. जो 1-on-1 मेंटरशिप है उसके भी मेंटर्स एलोकेट होंगे. ग्रुप मेंटरशिप तो आपकी मेरे साथ ही है, वो तो होनी ही है सेशंस, तो वो तो है ही. यस शिब्रता, वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. वीरांगना, अभी ऑप्शनल की डिस्कशन नहीं करते. Harshita is asking, how do we integrate static and current? We take current classes in January. When we are taking a current class in January, आप ऑलरेडी सारा स्टैटिक पढ़ चुके हो. अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आर्टिकल आता है द हिंदू में, जिसमें आपको आर्टिकल दिखा रहा था. दिस आर्टिकल इज अबाउट मल्टीसेलुलरिटी इन यीस्ट. इसमें एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ऑफ एवोल्यूशन, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ऑफ म्यूटेशंस. तो स्टैटिक को यहाँ पे आपको इसके साथ पढ़ाया जाएगा कि यार ये आर्टिकल आया, इसका ये स्टैटिक पार्ट है. That is how it is linked. Same for mains, same for prelims. Yes, Praveen, this is a GS course. Kalyan, follow the notes we are giving you here and whatever book the particular teacher recommends. Siddharth is saying, sir, please provide a detailed overview of the timetable, subject-wise breakdown. See, I'll tell you why we can't give you a subject-wise breakdown or a week-wise breakdown. We can give you a broad breakdown. जैसे अभी आपको economy बताया, when you have the first class of economy, you will be told how economy will be handled. जैसे इकोनॉमी में जनरली क्या होता है, जैसे आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले हम पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे. यू विल बी टोल्ड दिस. Why it can't be specific to a day? Because it depends on your learning pace also, right? आदित्य सर ने लेक्चर लिया, एक दिन आप लोगों को सब कुछ एकदम समझ आ गया, कोई डाउट्स नहीं है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा. एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं यार अभी तो बहुत डाउट्स हैं या इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, तो लेक्चर में टाइम लगेगा. सो व्हेन यू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट, दिस इज अ ब्रॉड ओवरव्यू. व्हेन यू स्टार्ट इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट क्लास विल बी ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ऐसा नहीं होगा कि मंडे को आप आए और आपकी क्लास शुरू हो गई. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी. इट विल बी कि यार मंडे को हम आए, मंडे को हमारी क्लास स्टार्ट हुई, पहली क्लास में हमें बताया जा रहा है कि अच्छा अब ओवर द नेक्स्ट 2 months व्हाट आर वी गोइंग टू डू. वहां पर वो वीक वाइज ब्रेकडाउन होगा. विशाल, you can take the printouts or you can make notes digitally, and whether you should make notes digitally or whether you should make notes or not, you go for the specific teacher's opinion. Again, note making from the specific teacher's opinion. प्रांजल, ये इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ आपकी एलिजिबिलिटी का. दिस यू शुड जस्ट read the notification. I would need a lot of details to tell you whether you would be eligible or not. Yes, for means you will have means format tests. How to make notes on A4 paper? The way you would make notes on a notebook. A4 paper भी तो पेपर ही होता है, जैसे पेपर पे नोट्स बनाते हैं वैसे ही बनेंगे. Digital notes I have addressed. You don't need to buy any PYQ book. जो PYQs होंगे उनकी कंपाइलेशन आपको यही प्रोवाइड कर दी जाएगी. कोई और बुक PYQs की मत खरीदना अभी. Do I need to study anything beforehand? Good question, शिवानी. No. इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है मंडे से, डजंट मीन आप पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ के आओ. आप बस क्लास के टास्क फॉलो कर लेना. प्लीज मेक क्लियर व्हाट टू डू बिफोर बिटवीन 9:30 एंड 4:30. ये जो आपका फ्री टाइम है 9:30 to 4:30, ये तब तक ही फ्री है तब तक आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट नहीं करते.
तो अभी 1 महीना जस्ट गेट यूज टू थिंग्स, दिस इज योर फ्री टाइम। जब ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ऑप्शनल फिट होने लगेगा। Yes, anybody who wants, actually it's just you can leave in a minute. खत्म ही हो रहे हैं डाउट्स भी। Is it wrong to study till 4 AM? क्यों भाई, क्यों पढ़ना है till 4 AM अगर 12 बजे तक काम खत्म हो रहा है तो? What to do in these 3 days? Nothing. आपके पोर्टल पे मेरी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट हाउ टू रीड, अबाउट हाउ टू मैनेज योर फोन, व्हाट इज एक्टिव रिकॉल। अगर पॉसिबल है तो वो वीडियोस देख लो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इवैल्यूएशन पे आएंगे मधुरिमा वंस वी कम टू द मेंस थिंग। अभी मेंस की चीज आई नहीं है, we've not come to means. When we come to means, I'll take another session with you and talk about how evaluation is done, so don't worry about that. ठीक है, अभी उस पर फोकस करते हैं जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, anyway, sorted out। ठीक है, so I had to spend some more time with you in explaining interlinkages, but we've already spent about 2 hours here today, so I'll take another session with you with then। वो भी better आपको समझ आएगा once you know economy is something that you've understood। इकोनॉमी के बाद लेता हूँ मैं आपके साथ वो सेशन, वैसे भी वो सेशन होना था। Anyway, thanks a lot for being here, thanks a lot and welcome to Sarthi IAS। In the end, I'd just like to tell you that you've made one right decision to come here and you are in the best possible place in the entire UPSC industry to get selected. But this is just the start of the journey, it's not where it ends. Now it will be determined on the basis of how hard you work, how much you study, how dedicated you are, and how you are persevering every single day. Please carry forward with that. Please ensure that you are the best version of yourself. Please ensure that you are absolutely disciplined and committed to this exam. And please ensure that no matter what happens, you will prioritize this exam as your first priority in life. You will keep working hard, you will not take shortcuts, and you will give it your everything. I promise that however hard you work, I will work harder than you to get you selected. So let's work as hard as possible and get selected within our first attempt. With those words, I wish you all the best and I hope you have a great journey with us. I'm sure you will have a great journey with us and I'll see you soon. Thank you guys. Bye-bye.